बीजं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। Om Shanti 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 Harihi Om. So let us start. Today summary is to be done by Majumdar. Okay. Yes, Chalo. Maharaj. A very important and very good article. I hope I am audible, Maharaj ji. Yes, very much. Good. Okay. Yes. The topic is, Pranam Maharaj ji, the topic is the necessity of religion from Swamiji's Complete Works, Volume 2 and Chapter 1, page 67. Of all the forces that have worked and are still working to mold the destiny of human race, the most potent one is religion. This force of religion is at the back of all social organizations and gives it a cohesive impulse of bonding. This bonding of religious force is stronger than race, climate, or descent. Then Swamiji says, what is the beginning of religion? There are two views. One is the spirit theory of religion, which says ancestor worship is the beginning of all religious ideas. We see it in Egyptians, Babylonians, Chinese, and even in some Hindus too. The Egyptians built huge pyramids and preserved the bodies with the idea of a double. Double means one is the mortal body and the other is the spirit body, which lives on after the body dies as long as it is preserved. Similar concept is seen in the Babylonians, but in a more frightening form. Here the double is used to frighten the living beings to give food and drink. And then in the Chinese, it is all about ancestor worship all over the country. The other view is from the Aryan literature, which says religion originated from nature worship. In the Rig Veda Samhita, we find it. The gigantic forces of nature formed its basis. We also see it in ancient Greeks, Germans, and some Scandinavians. Swamiji now says that these two views can be reconciled by a third view. The third view, Swamiji says, is that both are a struggle to transcend the senses, and that is the germ of religion. The search for the mystery behind the body, or the great power working behind this stupendous phenomena of nature, is how religion started. The idea is to go beyond sense limitations. In fact, the first glimpse of immortality may have come through dreams. And through this dream idea, the human idea rises to higher and higher conceptions. The dream idea rises to higher and higher conceptions. Thus, the search had gone inside now. The higher states were beyond waking and dream and were found by prophets and founders of all organized religions of the world through ecstasy and inspiration. And they reached what is called the spiritual kingdom. The higher states were beyond waking and dream and were found by prophets, as I said. The Vedas, which are written by the rishis, are full of these mantras, which they discovered on reaching the spiritual kingdom. Hence, they were called seers, who conveyed their discoveries through mantras in Vedic hymns. Jews and Christians too declared some of these truths. Buddhists of the southern sect were exception, though even they found an eternal moral law, as discovered by Buddha in a super sensuous state. Thus, human mind transcends not only senses, but also the power of reasoning. Unlike concrete discoveries of physics, they are all abstractions. An ideal unit of this purest form of abstraction is put before us as an omnipresent being, an abstract personality called God, or an abstract essence underlying every existence.
We are always struggling to raise ourselves to this ideal, searching for infinite power, infinite pleasure, but only a few find it. Most of the works around us are due to this struggle for infinite power and pleasure. Ultimately, man realizes that it cannot be reached through senses and gives up attempting to express infinite through the finite. And thus begins renunciation, and this renunciation forms the background of ethics. Ethics says, not I, but thou. Senses say, myself first, but ethics says, others first, yourself last. Perfect self-abnegation is thus the ideal of ethics. And without superconscious perception, there can be therefore no ethics. The utilitarian says, give up this struggle for infinite. Now, this is the utilitarian view. It is absurd, but do good to society. So he says, struggle for infinite is absurd, but do good to society. But they don't realize why we should do good, why we should not injure others, why should I not make myself happy first? These are the questions that arise. Only morality and ethics derived through religion and spirituality can work through the individual. Not only the individual, but society too, because society is nothing but a number of individuals. People wrongly say too much spirituality disturbs our practical relations in the world. Swamiji says, if we try to be practical towards the world, we will become materialistic. Man is man so long as he is struggling to rise above nature. It is good and grand to conquer external nature, but grander is to conquer internal nature. The conquering of inner man, understanding the secrets of subtle workings within the human mind and knowing its secrets, belong entirely to religion. In every society, there are a few men whose pleasures are not in the senses but beyond. And in the history of nations, we find the rise of a nation is because of such men. Some men take pleasure in eating and possessing, but we have no right to say that they should not do so. Similarly, they also should not criticize men who find pleasure in spiritual thought. The lower the organization, the greater the pleasure in the senses. Very few men can eat a meal with the same gusto of a dog. The lower types of humanity find pleasure in the senses. In fact, even cultured and educated men find pleasure in thought, philosophy, arts, sciences, etc. But spirituality is a still higher plane. Now, what is the effect of spirituality? It is the highest motive power that moves the human mind. The utilitarians may have been good and moral, but the world movers bring, but the world movers bring a mass of magnetism in the world, whose spirit works in hundreds and in thousands, whose life ignites the others with a spiritual fire. Thus, in building up character, in making everything that is good and great, in bringing peace in others and to one's own self, religion is the highest motive power. Lastly, Swamiji speaks about harmony. Future religions of the world have to become universal and wide. Religions must be inclusive. All that was good in the past must be preserved, and we must keep the doors open for future additions. Religion will have to become real and living and not remain in the hands of a few priests, temples, churches, books, dogmas, rituals, etc. What is needed is fellow feeling between religions, mutual esteem and respect, and not to be condescending and patronizing. All will have to make concessions to bring about this harmony. That's all, Maharaj. Pranams. Okay. Wonderful, Very good. excellent, very good. Very good. Very good. Very good. Okay. Now we begin with questions. Shivani, are you ready?
Ji Maharaj. Maharaj, my first question is on page number 72. The sentence goes, none of us have yet seen an ideal human being, and yet we are told to believe in it. None of us have yet seen an ideally perfect man, and yet without that ideal, we cannot progress. Then what about all the great ones in the history? You see, ये आर्टिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉइंट इन है उसको समझना है कि क्या है कि धर्म का प्रारंभ हुआ, रिलीजन प्रारंभ हुआ, एंसेस्टर वर्शिप. तीन चीजें बताई. एक तो एंसेस्टर वर्शिप, दूसरा उन्होंने कहा कि वर्शिप ऑफ द नेचर, और तीसरा उन्होंने कहा ड्रीम्स. और तीनों में जो इम्पोर्टेंट बात बताई है वो ये है कि वी वांट, आवर ह्यूमन माइंड वांट्स टू गो बियॉन्ड सेंसेस. समझे ना? हमेशा वी डोंट वांट टू गेट रिस्ट्रिक्टेड बाय आवर सेंसेस. तो इसके लिए ये सारा है कि कोई ना कोई ऐसी सत्ता होनी चाहिए, कोई ऐसी स्थिति होनी चाहिए, कोई एक ऐसा एक आदर्श होना चाहिए जो इंद्रियों के परे हो. और इस आदर्श को सोचते सोचते उन्होंने एक आइडियल पर्सनालिटी, एब्स्ट्रैक्शन, परमात्मा बताया, और फिर एक आइडियल मैन बनाया. और भगवत गीता में तुम उसको आइडियल मैन है स्थित प्रज्ञ, है ना? स्थित प्रज्ञ बताया गया है. स्थित प्रज्ञ है, श्रेष्ठ भक्त है, त्रिगुणातीत भक्त है. तो तीन जगह पे गीता में एक आइडियल पर्सनालिटी या आइडियल पर्सन बनाया गया है. और जब हम देखते हैं, तुम्हारा जो प्रश्न है, स्वामी जी कहते हैं कि आइडियल वाज नेवर सीन, है ना? ये कभी हुआ नहीं. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हमेशा किसी न किसी प्रकार से आइडियल मैनिफेस्ट होते रहे हैं. राम हुए, कृष्ण हुए, जीसस हुए, श्री राम कृष्ण हुए. लेकिन ये आइडियल श्री राम कृष्ण हिंदुओं के लिए आइडियल हो सकते हैं. जैन लोग बोलेंगे नहीं, श्री राम कृष्ण को हम आइडियल नहीं मानते. बौद्ध बोलेंगे नहीं मानते. ईसा मसीह क्रिश्चियन बोलेंगे नहीं मानते. तो ऐसा एक आइडियल जो सबके लिए आइडियल हो, ऐसा कोई नहीं है. ये हमेशा थ्योरी में है, पुस्तकों में है, स्थित प्रज्ञ है, श्रेष्ठ भक्त है, त्रिगुणातीत भक्त है. तो यहाँ पे जो स्वामी विवेकानंद कहना चाहते थे कि ऐसा पर्सन, यानी आइडियल वो होगा जो इंद्रियों के परे चला गया, बियॉन्ड द सेंसेस. इसी को स्वामी जी कहते हैं कि आइडियल. एंड उसको आप कैसे भी ले लो, तुम सोचोगे नहीं हमने तो राम को देख लिया, हमारे आइडल हैं, तो हमको और किसी की आवश्यकता नहीं है, तो मामला समाप्त हो जाता. आज के जमाने में रामकृष्ण आ गए तो हमने रामकृष्ण को आइडियल मान लिया है, क्योंकि इंद्रियों के परे चले गए थे और संसार के परे चले गए थे. लेकिन दूसरे लोग कहेंगे कह रही ये कैसे रामकृष्ण है आइडियल है, जो कपड़ा भी नहीं पहन सकते. तो इस प्रकार से आइडियल जो है वो स्वामी जी कहते हैं कि एक आइडियल हैड ऑलवेज बीन रिमेन, हमेशा रहेगा. चाहे 10 रामकृष्ण हो जाए, कई बार कई अवतार हो जाए, लेकिन एक आइडियल रहेगा. अगर आइडियल नहीं होता है तो फिर वापस आने के श्री राम कृष्ण की क्या जरूरत है? श्री राम कृष्ण कहते हैं कि 200 साल बाद में वहां पे जन्म होगा. अवतार बार बार लेने की क्या आवश्यकता है अगर एक आइडियल व्यक्ति मिल जाता है? तो ये बात, एक आइडियल हमेशा हमारे सामने रहेगा और उसके एक्सप्रेशन जो हैं संसार में नाना प्रकार से होते रहेंगे, बट स्टिल एक आइडियल हमेशा बना. इज दैट ओके? महाराज महाराज जी एक गुड क्वेश्चन. जी महाराज जी एक सवाल. बोलो. ये आइडियल परिस्थिति समय देश के कारण सब बदलेंगे क्या? हाँ बदलती है तो, यानी लेकिन इंद्रियों के परे ये सारे आर्टिकल में मैंने बताया है कि देश काल के अनुसार आदर्श भले बदल जावे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंद्रियों के परे होगा. याद रखना. इस आर्टिकल में बार बार स्वामी जी कहते हैं कि मानव इंद्रियों से संतुष्ट नहीं होता है, वो इंद्रियों के परे कुछ चीज चाहता है, उस परिस्थिति को चाहता है, वो हमेशा बनेगी. तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. बराबर. पर ये आइडियल बदलते रहेंगे समय समय पर. यानी एक इंद्रियों के परे का चीज ठीक है, लेकिन अगर आप इंग्लैंड में जाके भारत का आदर्श रखोगे तो वो तो नहीं जमेगा ना. जी जी.
राइट। समझे ना? जी महाराज अब गांव में जाओगे तो गांव में तो आदर्श दूसरा हो जाएगा। जी। देश काल महाराज पात्र के अनुसार बाहरी परिस्थितियों में आदर्श बदलेगा, लेकिन इंद्रियों के परे वो होगा, वो हमेशा बदलेगा। बराबर। जी जी। हाँ क्या महाराज दीपिका? सिद्धांत तो वही रहेंगे ना? हाँ हाँ, हाँ, सिद्धांत वही तो सिद्धांत बोला। जो बेसिक है वो तो सब अब वही बेसिक- रहेंगे। यहाँ पे स्वामी जी ने इंद्रियों के परे जाने को एक बेसिक सिद्धांत यहाँ पे बताया। ठीक है, बाकी डिटेल में स्वामी जी नहीं गए। ठीक है। अच्छा, Next question, Hello. Maharaj, page number 77. Here it is mentioned, who did not believe in God at all, that is to say, not in our sense of the word. Perhaps they understood God better than we can ever do. The personal idea of God, or the impersonal, the infinite, moral law, or the ideal man. These all have to come under the definition of religion. तो महाराज यहाँ पे एग्जाम्पल्स लाइक जैसे अंगुलीमाल, तुलसीदास, उनके बारे में क्यों कहा रहते गया? हैं? अब क्या है, आदर्श है वो, जो ईश्वर को नहीं मानता है लेकिन फिर भी मॉरल है। यही तो अंगुलीमाल तो बदमाश था। अंगुलीमाल तो बदमाश है। नहीं नहीं आज के महाराज, जमाने में महाराज यहाँ पे लिखा है दे अंडरस्टूड गॉड बेटर देन वी कैन एवर डू। हाँ, हु? Those who did not believe in God. यस। हाँ, और कौन है ये? तो एक एक दृष्टांत हमको मिलता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अच्छा। वो धार्मिक अपरेंटली नहीं थे, लेकिन कितनी सेवा की उन्होंने। श्री राम कृष्ण की उनसे मिलने के लिए गए थे। तो अंगुलीमाल और तुलसीदास, तो ये तो अंगुलीमाल तो पापी था ना। जी। अंगुलीमाल ने तो कई कितने 1000 हत्याएं की थी, कितने हजार हत्याएं की थी। तो उसको कैसे ला सकते हो यहाँ पे? महाराज बुद्ध का एग्जाम्पल अच्छा रहेगा ना महाराज? तो अंगुलीमाल यहाँ और पर तुलसीदास तो यहाँ नहीं आएगा महाराज। हाँ। इस जगह पर बुद्ध एंड ये महावीर, ये सब आइडियल एकदम परफेक्ट रहेगा। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, ये बुद्ध और क्योंकि वो महावीर तो ईश्वर को भगवान नहीं मानते थे। हाँ, हाँ जी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। जी। ओके, ठीक है महाराज। नेक्स्ट ये क्वेश्चन। क्वेश्चन ठीक हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, क्लियर हो गया महाराज। अच्छा, Next question, last page number 78. As Swamiji said these lines many years ago, then why this is not in religion still? Lines are, what is needed is a fellow feeling between the different types of religion, seeing that they all stand or fall together, a fellow feeling which springs from mutual esteem and mutual respect, and not the condensing, patronizing, niggardly expression of goodwill, unfortunately in vague at the present time with many. what is needed is a fellow feeling between Fellow different feeling. types of religion. यही तो जी। शुरू किया ना। What is needed is a fellow feeling between different types of religions, Hmm. seeing that they all stand or fall together, a fellow feeling which springs from mutual esteem and mutual respect, and not the condescending, patronizing, niggardly expression of goodwill. ठीक है? That is the point, isn't it? जी। तो ये तो स्वामी जी के बाद में 100 साल हो गए हैं, बहुत फर्क पड़ गया है। ऐसा नॉट दैट नहीं है, लेकिन बहुत फर्क पड़ा है। क्रिश्चियंस भी आजकल हिंदू लोगों की बात सुनने लग गए हैं। तो भले ये माने कि हमारा रिलीजन सुपीरियर है, हिंदूज का इंफीरियर, लेकिन मानने लग गए हैं, सुनने लग गए हैं। तो ये तो हो गया, इन मेनी रिस्पेक्ट्स हो गया है। लेकिन वैसा जैसा हिंदुओं का है उदार, वैसा तो नहीं। और दूसरी तरफ लोग तो हिंदुओं में भी तो कट्टर हैं। तो कट्टरता रहेगी और सुविधारता रहेगी, सब जगह रहेगी, 100 साल बाद भी रहेगी। स्वामी जी का फिर अवतार होगा और फिर स्वामी जी कहते हैं कि फेलो फीलिंग रहेगी, फिर भी मेरा रिलीजन सुपीरियर है, तुम्हारा रिलीजन सुपीरियर, ये तो होगा महाराज। ये होने वाला है, तो कुछ नहीं कर सकते। महाराज, मेरे स्कूल में
एक टीचर कैथोलिक प्रीस्ट थे, हाँ। और उन्होंने पहली बार मुझे बहुत बचपन में कहा था ये बात हम दोस्तों को कि दुनिया में सनातन धर्म जितना समृद्ध लिटरेचर या शास्त्र कोई नहीं है। क्या क्या मैं उन्होंने कहा था बाइबल और सभी ग्रंथ अच्छे हैं, मगर जो इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं इतना रिच और मैच्योर और परिपक्व और कोई स्क्रिप्चर नहीं है। Bible is good and Quran is maybe good, but there is no match with Hindu scripture and Hindu literature. अच्छा, oh, very good, very good, ठीक है। And he lived, and his whole life is also like a Vedantic life. He rarely visited church. He stayed in the campus. He rarely visited church. अच्छा अच्छा। And his life was so good and so beautiful that everybody who came out of the campus always remembers him. लेकिन ये जो पोर्शन है ना जी, ये तो क्रिश्चियनिटी से भी हो सकता है। दे लॉ यानी एक वेरी नाइस लिविंग, जी जी, ऑनेस्ट लिविंग, एक अपराइट रीडिंग, बढ़िया लिविंग जो है ये एक क्रिश्चियनिटी इंस्पायर करती है। और मैंने कई देखे हैं बहुत अच्छे फादर्स वगैरह, दे आर वेरी गुड, लाइफ इज वेरी गुड। जी जी जी। चलो महाराज, चलो चलो आरंभ करो। हो गया क्वेश्चन बस? हाँ जी महाराज, प्रणाम जी। अच्छा, सुबीर मजूमदार। हाँ, प्रणाम महाराज जी। हाँ। मेरा पहला सवाल महाराज जी, दिस इज फ्रॉम पेज 69, लास्ट पैराग्राफ, लास्ट बट वन लाइन। स्वामी जी कहते हैं, द फर्स्ट आइडिया ऑफ इमॉर्टैलिटी मैन मे वेल गेट थ्रू ड्रीम्स। व्हाट डज ही मीन बाय दैट? वो ये है कि हम शरीर तो पड़ा हुआ है मरे हुआ जैसा। जी। The physical body is lying dead as it were. जी। फिर भी मन चल रहा है। ओके। मतलब हमारा बॉडी में चला जाएगा तब भी हमारा मन बचा रहेगा, क्योंकि बॉडी तो डेड पड़ी हुई है। उसको कोई भी गंदा कर दे हमको पता ही नहीं चलेगा। तो बॉडी इज लाइक डेड। जी। डेथ के साथ में भी फिर भी मन चल रहा है, कुछ न कुछ चल रहा है। ये हुआ इमॉर्टैलिटी का, ऐसे मन वो मिलेगा। तो उसमें ड्रीम्स का क्या मतलब महाराज जी? ड्रीम्स, you have used the word dreams. ड्रीम्स स्वप्न। अरे सपना तुम्हारे पास बैठी। अरे स्वप्न, ड्रीम में हम सब बहुत सारे देखते हैं ना। हम सो रहे हैं और सोते हुए हम दिल्ली, कलकत्ता, बंबई चले गए तो जी तो बॉडी तो मरी हुई है। अच्छा। फिर भी हम घूम रहे हैं उसी तरह, राइट। हाँ। माइंड इज वर्किंग। यानी जिस प्रकार माइंड बचा रहता है उसी प्रकार से आत्माएं बचे रहेगी। यानी इमॉर्टैलिटी का भाव जो है वो बना रहता है, इसलिए सोल हो सकता है। जी समझ गया। दूसरा सवाल महाराज जी ये है, स्वामी जी कहते हैं 75 पेज में, वी शैल फाइंड दैट द राइज ऑफ ए नेशन कम्स विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सच मेन। अब ये सच मेन का उन्होंने उसके प्रीवियस लाइंस में कहा है कि who have gone beyond senses and who catch glimpses and are struggling to go higher. Now today we see materialistic rise in USA undoubtedly, but where are these men? If it means spiritual rise, then which nation has risen through its spirituality? अभी कोई ऐसा तो दिख नहीं रहा है। Or is he talking about the glorious past of India? Not only glorious past. स्वामी जी सारा अमेरिका घूम के आए। हाँ। और घूम के आके उनकी आंखें खुल गई
वो आए जब आके तब कोलंबो टू अल्मोड़ा जो लेक्चर दिया उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा जी जी कि मैं बाहर इंडिया के बाहर जाके मैं इंडिया की ग्रेटनेस समझने लगा हूँ। यहाँ पे Right, जो right. गांव का गरीब आदमी भी है ना, वो भी जी, जी. महान है, कृषक भी जानता है। बार बार स्वामी जी इस बात को कहते थे, यही कहते थे कि बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी इंडिया इज सो ग्रेट। राइट महाराज। हाँ। ठीक है महाराज। और तीसरा सवाल है, स्वामी जी elsewhere has spoken of faith in one's own self as a reason for the advancement of civilization in the West. He says कि पहले कह चुके थे कि वेस्ट में ज्यादा एडवांस्ड इसलिए हुए हैं कि the person had more faith in himself. Now how did this faith develop? क्योंकि इंडिया में he saw that faith was missing. सब तमस में पड़े हुए हैं, they have been dominated over thousands of years, they were slaves. तो ये faith बिल्कुल disappear कर गया था। तो how did this faith develop in the West? उनमें ये तो बेसिक ना ऐसा है कि एक वेस्ट की जो कंडीशंस जो है ना, पर्टिकुलरली जो इंग्लैंड है और अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे नेचर के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है ना। मेरे को यही लगा कि वन ऑफ द रीजंस कुड बी दैट दे हैव टू स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर। तो बेहतर से तो काम नहीं चलेगा। जी जी करता ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो उसके बाद में अल्टीमेटली दे डेवलप फेथ इन देमसेल्फ। दूसरे बैठने से तो काम चलेगा नहीं। भगवान बैठेगा, चारों तरफ बर्फ पड़ा हुआ है और भगवान करेगा तो होगा नहीं, मेरे को ही साफ करना पड़ेगा। So faith have developed most probably because they had to struggle and rise. One of the reasons could be this. मतलब पुरुषार्थ के थ्रू and by struggling. ठीक है। स्ट्रगल। ठीक है महाराज। That's all महाराज जी। प्रणाम महाराज। देवाशीष प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। हाँ, पहला क्वेश्चन तो अभी शुभित का था, वो ग्लिम्स ऑफ रिलीजन आपने बता दिया, वो मैं नहीं करूंगा। और सेकंड क्वेश्चन अभी आपने बताया था, वी लर्न सॉलिड फैक्ट्स एंड ट्रूथ फ्रॉम रिलीजन एज ए साइंस, as a study is the greatest and the healthiest exercise that the human mind can have. Can religion remove the poverty of the people of our country? अरे स्वामी जी ने यही तो कहा है। This is what Swami Vivekananda said. दरिद्र नारायण भव, दरिद्र नारायण भव, मूर्ख नारायण भव। दरिद्र को रोटी देना ये सबसे बड़ा महान रिलीजन है, सबसे बड़ा रिलीजन है। रोगी नारायण भव, हॉस्पिटल लगा चलाए हैं, ये क्या है? बिल्कुल सिंपल है, क्लियर एंड क्रिस्प। शिव ज्ञान से जीव सेवा, दरिद्र नारायण सेवा, ये तो है। अच्छा, थैंक यू महाराज जी। तो बहुत क्लियर है, समझ में आ गया महाराज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यानी वो कहते हैं कि रिलीजन वो है ना, स्वामी जी कहते हैं रिलीजन वो कुकिंग पॉट में हो गया था। कह रहे उसने छू दिया तो मेरी जात चली जाएगी, ये रिलीजन है। उसके बदले स्वामी जी ने बिल्कुल बदल दिया रिलीजन। तो स्वामी जी ने रिलीजन को ही तो बनाया कि रिलीजन के माध्यम से, क्योंकि भारत में धर्म ही है, रिलीजन के माध्यम से लोगों को रोटी रोजी मिले, दवाई मिले, भला मिले। ये सबसे बड़ा तो है, तो सबसे बड़ा रिलीजन है। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होगा, ये कोई इंडिविजुअल लेवल पे होगा। अच्छा, अगर मैं गंगा विश्वनाथ दर्शन करने जा रहा हूँ और पास में कोई गरीब आदमी पड़ा हुआ है, रो रहा है, उसको अगर मैं खाना दे दूं तो ये सबसे अच्छी विश्वनाथ की पूजा हो गई। महाराज जी। हाँ महाराज जी, जी महाराज जी। बात है, इसके ऊपर प्रश्न क्या किया? अच्छा, ठीक है महाराज, समझ में आ गया महाराज। थैंक यू सो मच महाराज जी, थैंक यू। और थर्ड क्वेश्चन है, अभी शिवानी मैडम का ये आपने जवाब दे दिया है, that can a person be spiritual if he does not believe in God? How can they understand God better than we can ever do? Shri Chandra Vidyasagar और Buddha and Mahavir का example आया, तो ये अब क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा। Fourth one, therefore page 77, therefore religions will have to broaden. Religious ideas will have to be universal, vast, infinite, and then alone we shall have the fullest play of religion
for the power of religion has just begun to manifest in the world. My question is Vedanta the only solution for this broadness of religion? What do you mean by Vedanta? Means the अरे ये बताओ। God is there in each one of us, and if हाँ, you तो ये जो रिलीजियन कंसेप्ट हमारा इसमें ही तो माने नॉट ओनली दैट इन ऑल प्राणीज में भी है भगवान। तो ये जो ब्रॉडनेस है रिलीजियन का, ये तो और कहीं मिलता है क्या वेदांत छोड़ के और कहीं? नहीं, वेदांत तो है ही ना। तो प्रश्न क्या उठता है? वेदांत तो है ही। तुम्हारा प्रश्न हाँ, क्या है? नहीं, इज इट द ओनली वेदांत सॉल्यूशन और इज देयर एनी अदर सॉल्यूशन? है तो अच्छा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, दरिद्र भव, चांडाल देवो भव, सब तो है उसमें। हाँ महाराज जी, थैंक यू महाराज जी, समझ में आया। फिफ्थ वन इज सतीश सर, महाराज जी और एक लास्ट है, but when we come to real spiritual universal concept, then and then alone religion will become real and living. It will come into our very nature, light in our every moment, penetrate every pore of our society, and be infinitely more a power for good than it has ever been before. My question is, what are these real spiritual and universal concepts that should come into religion which is lacking now? ऐसा है कि रिलीजन जो है, स्वामी जी कई जगह पर बोलते हैं कि रिलीजन जो है कुकिंग पॉट में रह गया, इसको मत छुओ, उसको मत छुओ, बल्कि उसके बदले अभी भगवान जो है सर्वत्र हैं। रोगी नारायण को दवाई देना ये रिलीजन है। और टीचर बच्चे को पढ़ाना ये रिलीजन है। हाँ महाराज जी, दीज आर रिलीजन्स। इसको करोगे तो सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू प्रणाम महाराज जी, थैंक यू। सतीश, आर यू? प्रणाम महाराज। आ जाओ। बड़े हम तुम्हारे क्वेश्चन से हम डर गए, इतना बड़ा क्वेश्चन था, बाप रे। महाराज बहुत टफ आर्टिकल था, क्वेश्चन मिले नहीं। महाराज फर्स्ट क्वेश्चन, पेज 68, with the ancient Egyptians the first idea of the soul was that of double. This double went out of the body, yet lives on. Maharaj, according to me, this is more or less rudimentary concept of Jeev or Jeevatma of Hindu philosophy. Maharaj, can it be said that the idea emerged out of dreaming, that they have discovered that during sleep, when the body is apparently dead, the mind goes on with the intricate workings? Or why the idea born out of super sensual experience? देखो, दोनों बातों में जहां पे भी है वहां पर याद रखो, यदि ऋषि भी सुपर सेंसेस हुए, ड्रीम भी तो एक प्रकार का सुपर सेंसेस है ना। सुपर सेंसेस यानी इंद्रियों के परे जाना। तो जब हम सो जाते हैं तो इंद्रियां सो जाती हैं और मन इधर जाता रहता है। तो मन ड्रीम्स के द्वारा आइडिया मिली है और ऋषियों ने है वो अपने सुपर सेंसेस। महाराज आपका इंटरनेट नहीं आ रहा। हम लोग वीडियो ऑफ कर देते हैं ना। हाँ, नहीं सुनाई दे रहा। तुम्हारा प्रश्न क्या है? महाराज आपकी बात सुनाई नहीं दी। क्या प्रश्न हो गया तुम्हारा? महाराज आपको सुनाई नहीं दिया, आपने जो जवाब दिया ना वो सुनाई नहीं दिया, दोबारा से कह दीजिए। वो आपका नेट वीक था, नेट चला गया था, नेट चला गया। आपका म्यूट हो गया महाराज, अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा ठीक है, अब बोलो। अब ठीक है महाराज, अब ठीक है। महाराज इसका जवाब फिर से दीजिए, वो आपका नेट चला गया था, बात आप सुनाई दे रही।
आप फिर से सवाल कह दीजिए सतीश जी। क्वेश्चन फिर से करो ना, तुमने इतना लंबा किया, कोई क्लियर तो करो, छोटा सा करो ना, इतना लंबा किया, माय डर गया। क्वेश्चन वाज कि ये जो उनकी जो कॉन्सेप्ट थी डबल बॉडी की, हाँ, तुम्हारी हिंदुइज्म में भी तो है, एक जीव आत्मा होती है और एक हाँ, 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 अपना हाँ, ठीक है। अनमिस्ड होता है। हाँ। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्या सुपर सेंसुअल स्टेट में से आई या ड्रीम स्टेट में से आई, नहीं नहीं, सुपर सेंसेस से क्या लेना देना है? और वो देखो, रीजनिंग से आई? देखो सुनो, तुम तीन चीजें मिला रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, एक तो तुम उसको आत्मा कह रहे हो, हाँ जी, हाँ जी। और दूसरा उसको ड्रीम के साथ मिला रहे हो, और तीसरा सुपर सेंसुअल चीज मिला रहे हो। तीनों को मत मिलाओ। आत्मा तो आत्मा है, उसमें फिर सुपर सेंसेस की बात कहाँ आती है? नहीं, आत्मा नहीं, जीव आत्मा की बात करो महाराज, जो हमारा अंतःकरण होता है। तो जीवात्मा जो है वो सुपर सेंसेस का प्रश्न कहाँ उठता है? वहां सटल बॉडी की बात करो। सटल बॉडी है, हाँ जी, सटल तो बॉडी करो। तो वो उनकी जो कॉन्सेप्ट तो जो उसमें थी उसको उनकी, देखो, सुपर सेंसेस जो है ना, मन की स्टेट है, उसके साथ मत मिलाओ। हाँ जी, हाँ जी, उसमें एक प्रॉब्लम हो रही है। जी 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 जी, आत्मा जीवात्मा है, जी, तो जीवात्मा है तो सब में है जीवात्मा, लेकिन सुपर सेंसुअल स्टेट तो साधना के द्वारा होती है, ऐसे तो नहीं मिलती। तो इसी से कॉन्सेप्ट जो डबल बॉडी का कॉन्सेप्ट इसी में से आया, जो हमारा एक्सपीरियंस है। वो तो पुराने जमाने में जब नहीं समझते थे वो लोग, हाँ हाँ जी, यानी वो वहाँ पे जो ग्रीक वगैरह थे, तो उन्होंने उसको डबल समझा, तो वो उनको ये जीवात्मा का कंसेप्ट तो उन लोगों को नहीं था। हिंदुओं ने तो डबल की बात नहीं कही, उन्होंने सटल बॉडी की बात की है। वो लोग तो क्या कहते हैं, मर गया तो उसको मम्मी बना दिया और उसको बन गया, क्योंकि इसके अंदर जब तक शरीर ठीक रहेगा तब तक डबल भी रहेगा उसके साथ में। सटल बॉडी भी रहेगी, इसका मतलब तो यही होगा ना। डबल रहता है उसके साथ में, तो वो हमेशा रहेगा जब तक शरीर बना रहेगा। तो ये उन लोगों का कंसेप्ट था। इट वाज ए रूडिमेंटरी कॉन्सेप्ट ऑफ सटल बॉडी, व्हाटएवर इट इज। तो इसको तो मिक्स अप मत करो इसका सुपर सेंसुअस के साथ। ठीक महाराज, ठीक महाराज। सेकंड क्वेश्चन महाराज, वो तो हो गया क्वेश्चन, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, आइडियल ह्यूमन बीइंग, वो तो हम तो मानते हैं श्री रामकृष्ण वाज ए परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स, आइडियल ह्यूमन बीइंग। हमारा थर्ड क्वेश्चन, लेकिन 50 साल बाद में कोई रामकृष्ण को शायद न माने, उसके बाद फिर दूसरे आश्रम क्यों और दूसरे किसी को चाहिएगा। पर आते रहेंगे ना, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स जो होते रहेंगे, अवतार तो आते रहेंगे। वही तो मैंने कहा, चलता रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, पेज 73, स्वामी सेज perfect self annihilation is the ideal of ethics. The utilitarians, however, came out with the theory that we can have the pursuit of maximum pleasure, maximum happiness, even while sustaining our individuality by following the ethical behavior which has been evolved in the society. My question, Maharaj, is the utilitarian theory wrong in as much as one? Is the utilitarian theory is also right, because it also gives more pleasure while following the societal norms without having to be religious. यूटिलिटेरियन थियरी में क्या है कि ईश्वर को नहीं मानते, नहीं मानते, समझे ना, ईश्वर को नहीं मानते। कहते हैं ईश्वर की मानने की आवश्यकता नहीं है, उसके बिना भी काम चल जाएगा। जी, समझे ना, वो ईश्वर के बिना भी काम चल जाएगा, वो मानते हैं। और संसार का भला करो, सुख से रहो, आनंद से रहो। तब तुमको ये अच्छा लगे तो ले लो, अधिकांश लोग ले लेते हैं। जी 90% लोग आजकल फॉलो कर रहे हैं, करेंगे, बस रहेंगे, तुमको अच्छा लगे तो ले लो। लेकिन ये धर्म नहीं है। धर्म मानव मन जो है वो इंद्रियों के परे जाना चाहता है। वो आध्यात्मिक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से इंद्रियों के परे जाना चाहता है, और वो जब नहीं जा पाता है तब वो उसको अच्छा नहीं लगता। दैट इज रिलीजन। महाराज जी, आजकल भी यूटिलिटेरियन दिखते हैं यूएस में। महाराज जी, आई हैव मेट ए फ्यू दिस टाइम, जो भगवान को नहीं मानते लेकिन कहते हैं बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, बी कंपैशनेट, दैट इज गुड इनफ, हेल्प पीपल। That's all right.
हाँ हाँ यानी ऐसा है कि जो भगवान में माने और उसके बाद स्वार्थी रहे, उससे तो बाबा भगवान ने नहीं मान के और निस्वार्थी रहना बेटर है। जी बिल्कुल महाराज। जी महाराज, that is all महाराज जी, 3 क्वेश्चन थे मेरे। अच्छा, ये जो कुर्सियां लगा लो, प्रणाम वहाँ बैठ महाराज। जाएंगे। इज इट ओके? महाराज जी, मेरा एक छोटा सवाल ये है कि यूटिलिटेरियन थ्योरी और कर्मयोग में क्या फर्क रहेगा? कर्मयोग में और यूटिलिटेरियन थ्योरी। कर्मयोग में तो यूटिलिटेरियन, कर्मयोग में तो क्या है कि उल्टा निस्वार्थ है। होके उसके बाद में तुम आत्मा के परे चले जाओगे। अच्छा, ये निस्वार्थ हमारी होके आप परे चल जाओगे आत्मा के। यानी ये हमारी सोच रहती है कि कर्मयोग के अंदर काम करने के बाद हम आत्मा के परे जाएंगे, और यूटिलिटेरियन में ये सोच नहीं रहेगी। हाँ, उसमें नहीं है, अच्छा, उसमें ये चीज नहीं है। अच्छा, आत्मा तो उसका चित्त शुद्धि है, उसके बाद में कर्मयोग से तो काफी ऊंचा है। कर्म से आप आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हो। जी। महाराज 4 वाक्य के समान है क्या? हाँ, ये Yes. 4 वाक्य के हाँ, समान 4 वाक्य है। है। 4 वाक्य के समान। बराबर जी महाराज, प्रणाम। नाम बड़ा है, दर्शन चुन रहा है। हाँ चलो दिलीप भाई आ जाओ। हाँ, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी, my first question is, we say Hindu religion is the oldest in the world, but here in the article it is written that the supersensuous certain facts which were recorded by our sages and rishis were also experienced by Christians and Jews. So originally there was only one dharma, and that was Hindu or Sanatan dharma. And the Christians and the Pagambers and the Jews have also recorded the same experiences. So they were also Hindus, can we say? तो मान लो ना, वो सभी तो एक हिंदू धर्म तो सनातन धर्म है ना। जी। तो वो तो मुसलमान को भी अपने ले लेता है, क्रिश्चियन को भी अपने में ले लेता है, सबको ले लेता है। उसमें क्या दिक्कत है? श्री रामकृष्ण के पास में मुसलमान जाएगा तो भी उसको अच्छा लगेगा। श्री रामकृष्ण कहेंगे तुम भी तो हमारे ही मत के हो। मसीह का ईसाई आया तो उसको लगा कि ये श्री रामकृष्ण तो हमारे मत के ही आदमी है। मुसलमान श्री रामकृष्ण के पास जाता था तो कहता था कि ये हमारे मत के आदमी है। तो श्री रामकृष्ण तो सबके मत के आदमी थे। अब नाम तुम जो भी करना चाहो, सनातन बोलना चाहो ना हिंदू बोलना चाहो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। नहीं महाराज जी, मेरे अनुसार तो धर्म एक ही है। हाँ, धर्म एक है। के अनुसार धर्म ऐसा है। अब उसको आप जो नाम दे वो आप दिलीप भाई के नाम से दे दो, जो करना चाहो करो। नहीं महाराज जी, मैं ये समझना चाहता था कि ये सनातन धर्म है, दिस इज द ओल्डेस्ट, और उसके बाद ये क्रिश्चियंस और ज्यूज और ये लोग आए, तो इन्होंने ये धर्म को अपने नाम से पर एडॉप्ट होकर वही किया है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, थोड़ा फर्क तो है। यार आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि फर्क तो है। देखो, मैंने पूरा सनातन धर्म नहीं पढ़ा जी। और तुमने भी पूरे ईसाई और मुसलमान धर्म नहीं पढ़े हैं। हम ये कैसे कहें कि वो मुसलमान धर्म और सनातन धर्म, मुसलमान और ईसाई धर्म जो है सनातन धर्म के ही रूप है, ये कैसे बताएंगे आप? बराबर जी महाराज, ऐसा कहना मुश्किल है। ओके जी महाराज। My second question, it is written, he wants to place food of them and in certain sense to worship them. Out of that came the growth we call religion. Is it the same what we Hindu performs the rituals of Shraddha and Chinese ancestor worship? Here I feel that some of the extent Chinese thinking of worshipping is identical to Hinduism, but the thinking of Jainism is absolutely contradictory or Sanatan Dharma. क्या बोला तुमने, समझ में नहीं आया? हाँ महाराज, मेरा ये कहना था कि जो इस आर्टिकल में लिखा गया है कि wants to place food on them and to certain sense to worship them. Out of that came the growth of we call religion. तो ये जो हम श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध की क्रिया करते हैं श्राद्ध पक्ष में, या आगे लिखा है कि चाइनीज लोग भी एंसेस्टर वर्शिप करते हैं, क्या ये सब एक ही चीज है? और ये ऐसा है कि किसी न किसी प्रकार से, देखो फिर समझ लो इस चीज को बार बार जी,
धर्म की प्रारंभ होता है, हम किसी न किसी प्रकार से इंद्रियों के परे जाना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम अपने को शरीर से भिन्न कुछ एक ऐसी सत्ता है जो शरीर से भिन्न है, उसको हम पकड़ना चाहते हैं। श्राद्ध का अर्थ है कि मर गए, जो मरना चाहे मर गए, लेकिन फिर भी कुछ बचा हुआ है, वो क्या है? इंद्रियों के परे है। तो इंद्रियों के परे जाने की इच्छा मानव में सर्वत्र है, यहाँ भी है और कहीं भी होगी, सब शास्त्रों में होगी, सभी धर्मों में होगी। इसके माध्यम से हम इंद्रियों के परे जाना चाहते हैं, इसी तरह धर्म का विस्तार हुआ। अब इस तरह ले लो। अब उसके बाद यदि इसके बाद तुम अगर जितने धर्म पढ़ोगे तो क्रिया अनुष्ठान बहुत सारे पाओगे, सब धर्मों में क्रिया अनुष्ठान मिल जाएंगे। और ये क्रिया अनुष्ठान का उद्देश्य भी क्या है कि हम जो बाहर की चीज है उसके पीछे कोई सत्ता है उसको प्राप्त करें, बस इतना ही ध्यान रखो बस। राइट। मेरा तीसरा सवाल है, हाउ ए रिलीजन बिकम एन यूनिवर्सल कंसेप्ट? हाउ ए रिलीजन हैज बिकम ए यूनिवर्सल कंसेप्ट? ये यूनिवर्सल कंसेप्ट कैसे बना महाराज? इट इज रिटन ऑन पेज नंबर 78. Yes. यूनिवर्सल श्री रामकृष्ण का जो तो मत तो पथ। But तुम जो पूजा कर रहे हो वो भी ठीक है, पूजा कर रहा हूँ वो भी ठीक है, मुसलमान की पूजा भी ठीक है। तो ये रिलीजन जो है वो यूनिवर्सल हो गया ना, सभी लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, इसलिए उसको यूनिवर्सल कह सकते हो। तुम्हारी पूजा भी ठीक है, मेरी पूजा भी ठीक है। दुनिया में हर व्यक्ति धर्म को मानता है, बाय हुक और यस। जो तो मत तो जितने भारत के तो कितने करोड़ देवता हैं भगवान भारत में, बोलो तो पता लगा के बताना हमको। 33 कोटि भाई भारत में कितने देवता हैं पता लगाना। 33 करोड़ बताया अभी तो। इतने सारे देवता हैं यहाँ तो जी। My next question, expressions of religion whose heads as it were are penetrating more into the secrets of heaven through their feet are clinging to earth. I mean the so-called materialistic science. Yes, बिल्कुल। हाँ, यानी ऊपर स्वर्ग की बात कर रहे हैं लेकिन संसार में पड़े हुए हैं दम के। जी, मटीरियलिज्म है और कुछ नहीं है। यही प्रश्न था ना तुम्हारा? जी, यही सवाल है। हाँ, वही यही प्रश्न है, वो मटीरियलिज्म ही और कुछ नहीं। Okay, right. What is the spirit theory of religion and the evolution of the idea of infinite? स्पिरिट थ्योरी डिस्कस किया ना, एंसेस्टर वर्शिप। Okay. एंसेस्टर वर्शिप, हाँ, that is the पूर्वजों की पूजा। हाँ, उसमें स्पष्ट लिखा है, पहली लाइन में स्वामी जी ने लिखा है स्पिरिट थ्योरी, जी, और उसको एक्सप्लेन किया उन्होंने, जी, बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेन किया स्पिरिट थ्योरी का मतलब ही क्या है। जी, उनकी आत्मा जीवित है, उनको अभी हम उसकी पूजा करेंगे, उसी से धर्म का प्रारंभ होता है। बिल्कुल क्लियर है ये तो। जी। अच्छा महाराज जी, जब ये आत्मा की बात हम करते हैं, ये आत्मा, तो ये भूत प्रेत वाली आत्मा फिर कहाँ जाती है? ये क्या चीज है? भूत प्रेत वाली आत्मा, एक तो आत्मा भूत प्रेत। भूत प्रेत, हाँ, वो बुरा काम करते हैं इसलिए बेचारी बच जाती है, वो मुक्त नहीं हो पाती। अच्छा, पाप किया है, हत्या वगैरह की, तो इसलिए वो मुक्त नहीं हो पाती, बेचारी बच जाती है। तो बाकी जो होती है हमारी आत्मा, हम जब मर जाते हैं तो वो 10, 12, 15 दिन के बाद में फिर वो वापस नए शरीर जो हमने किया उस नए शरीर में चली जाएगी, उसका फिर जन्म हो जाएगा, फिर मुक्त हो जाएगी। हाँ, राइट। Next, what is the abstracted nature of worship? So also with the ancient Germans and Scandinavians and all other Aryan races. Thus, on this side too, very strong made out that religion has its origin in the personification of the power of nature. अब यहाँ पे ये नेचर सूर्य है तो सूर्य को भगवान बना दिया,
जी अग्नि है तो अग्नि देवता बना दिया है। हाँ ये इंद्र से पानी बरस रहा है तो इंद्र देवता, जी वायु देवता। हाँ तो दूसरे प्रकार से ये नेचर वर्शिप से शुरू किया, तब भगवान की बात कही, अरे बाबा ये तो भगवान है, इसमें देवता है, इसके पीछे इसमें शक्ति है, जी इस प्रकार से शुरू हो गया। जी इसमें क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत थोड़ी पर next question. To me, it seems very natural that the glimpses of religion should come through dreams. Yes. ये तो हो गया, डिस्कस किया ना, अभी डिस्कस किया हमने ड्रीम्स के बारे में। हाँ, कि रात सोते हैं तब वो कहाँ होता है, अभी हम सो रहे हैं, हमारा शरीर सो रहा है, हमारा मन काम कर रहा है, मतलब ये कि शरीर से परे कुछ चीज है, तो डिस्कस हो गया, बार बार डिस्कस हुआ ये। अच्छा, next. How utilitarian grounds can be good and moral? हो गया। हाँ, ये जो हो गया है, पर ये ग्राउंड मॉरल हो सकते हैं। What we are doing social service. हाँ, सोशल सर्विस ये धर्म नहीं है। थोड़ा सा कर लिया, जहाँ के है वहाँ के वहीं रहेंगे। अच्छा जी सोशल सर्विस कर दी तो हाँ। आदमी जहाँ का है वहाँ का वहीं रहेगा। सोशल सर्विस रिलीजन नहीं हुआ। ये यूटिलिटेरियनिज्म को स्वामी जी, यही उस जमाने में स्वामी जी ने जब लेक्चर दिया, उस समय लोग एंटी रिलीजन लोग बोलते थे कि इसकी क्या जरूरत है, यूटिलिटेरियन करो, सेवा करो, लोगों का भला करो और नैतिक आदर्श जीवन में नैतिक विहरो, किसी का बुरा मत करो, बस उसके खत्म हो गया। उसके बाद इसकी जरूरत क्या है धर्म की? दैट वाज द मेन पॉइंट। स्वामी जी ने इसमें 3-4 यूटिलिटेरियनिज्म को बार बार उसमें डिस्कस किया है। उस जमाने में ये लेक्चर को उनको खास करके इसको बताना पड़ा है कि मानव मन जो है इंद्रियों के परे जाने की इच्छा करता है। जब तक इंद्रियों के परे नहीं जाएगा तब तक मानव मन को संतोष नहीं मिलता। अभी तो कम्युनिज्म हो गया, तो वहां पे सुनना है कि चाइना में भी कुछ प्रकार का रिलीजन चालू हो गया है ना। तुम चले जाओ हमारा इंटरनेट में देख लेना, चाइना के रिलीजन इन चाइना जी तो उसको मिल जाएगा तुम। जी महाराज जी, बस प्रणाम महाराज जी। है ना, समझ गए ना, वो देख लेना। पॉइंट इज दैट हमारा मानव मन इंद्रियों के परे कुछ चीज जानने की इच्छा करता है, इसलिए उसके बिना वो यूटिलिटेरियनिज्म से काम चलेगा नहीं। बार बार पूरे आर्टिकल में इसको बहुत इंपॉर्टेंट रूप से बार बार उन्होंने कहा। बराबर जी, बस प्रणाम महाराज, होगा सब। अच्छा भाई, चलो कुंडू। यस महाराज, प्रणाम महाराज। तुम्हारे चेहरे के ऊपर लाइट आ रही है क्या? तुम्हारे आंख में लाइट लग रही है क्या? ऊपर में लाइट है महाराज, सर के ऊपर। ओके ओके, चलो कोई बात। तो तुम्हारे फेस जो है ना, फेस इज वो क्या हेजी हो गया है बिकॉज ऑफ लाइट। ओके ओके। हमारा स्वामी जी, my first question is, Swami ji traces the origin of religion in human attempt to transcend the world of senses and desire to get immortality and infinity. That may be true of higher souls, but ordinary human beings worship God more out of fear or earn favor. Is not religion originated in primitive beings from a fear of the unknown? He speaks of worship of ancestors, but what about worship of trees and stones among tribals? नो, ट्रीज वगैरह का वर्शिप से तो कोई फीवर का प्रश्न नहीं उठता। ये तो बाद में है। Human nature wants to transcend the senses. That is the fundamental. Swamiji repeatedly tells in this article. Human is not satisfied with the level of senses. अब वो fear का part होगा, लेकिन स्वामी जी says this fear जो है वो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जो है इनके लिए मानव प्रयत्न करता है। या फिर आर्थो, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु, ये चतुर्विधा भजन्ते माम, भगवान के ये 4 करते हैं। लेकिन ये 4 में से क्या है, ये 3 जो है ना, ये मुक्त नहीं है। ज्ञानी जो है वो मानी भगवान के साथ एक हो जाता है, लेकिन बाकी 90% लोग जो है आर्त हैं, अर्थार्थी हैं।
जो आर्त है वो अपने को भय, उनको डर लगता रहता है, इसलिए डर से बचने के लिए वो भगवान को उपासना करते हैं। लेकिन तुम्हारा हाँ। ये कहना है कि भव के कारण धर्म हुआ, ये बड़ा मुश्किल है कहना। नो महाराज, मैं जो बोल स्वामी रहा जी हूँ, कहते हैं कि मानव जो है इंद्रियों के परे जाता है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। रिपीटेडली Yes. स्वामी जी, दिस पॉइंट ही रिपीटेडली डिस्कस, दैट इज द मोस्ट। यस महाराज। नहीं महाराज, मेरा सेकंड क्या है? क्वेश्चन, हाँ हाँ वो, हाँ ओके चलो उसको डिस्कस करिए सर। हाँ नहीं चलो। महाराज, आपने तो सेकंड क्वेश्चन भी तो मेरा वही था। मेरा कहना हाँ, ये है महाराज, जैसे व्हेन वी से रिलीजियन, वी औपचारिक धर्म जो है उसको हम समझते हैं। व्हेन वी से स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, जो मतलब सेंसेस के परे जाना, दैट कम्स आई थिंक, मतलब आफ्टर वी हैव समहाउ सेटिस्फाइड आवर बेसिक नीड्स एंड ऑल, जो कॉमन मैन रिलीजियन से समझते हैं। भगवान के पास जाके मामला जितवा दो या ठीक कर दो या मानत करते हैं, मतलब जो रिलीजन की मैनिफेस्टेशन हम चारों तरफ देख रहे हैं, दैट इज वासना पूर्ति है। उसमें मोक्ष की तो बात नहीं आया, लेकिन मोक्ष के बाद तब आता है कि जब जो है कुछ हद तक हमारे वासना पूर्ति हो जाता है, तब जाके हम सेंसेस के परे जाना चाहते हैं, तब जाके हम हायर सोल के बारे में सोचते हैं। बट अधिकांश लोगों के लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये रिलीजन है या स्पिरिचुअलिटी? This is what is mine. This is nothing to do with spirituality. ये प्रैक्टिकल रिलीजन, जिसको जो भी कुछ बहो यार, ये रिलीजन है, स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं। और No. यहाँ स्वामी जी कहते हैं कि ओरिजिन ऑफ रिलीजन होता है when we try to go beyond senses। ओरिजिन की बात कर रहे हैं, यार प्रकृति के पावर की बात की उन्होंने, समझे ना, और एंसेस्टर वर्शिप की बात कही। इन सबके पीछे ये है कि मानव अपनी परिस्थिति से संतुष्ट नहीं होता है, कुछ ऐसी चीज देखना चाहता है जो उसके परे है। तो ये जो है वो ओरिजिन के रिलीजन। और जहां तक प्रैक्टिकलिटी रिलीजन है, तुम जो कह रहे हो वो ठीक है। 90% पीपल, लोगों को इज नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग बियॉन्ड सेंसेस। Yes, वो तो अपने सेंसेस का फुलफिलमेंट हो जावे तो बहुत अच्छा है। अर्थात मेरे को खाने पीने को भगवान पूजा करते हैं किस लिए? प्रसाद पाने के लिए। बढ़िया किताब मकान मिल जाए, बढ़िया खाने पीने को मिले, इसलिए भगवान की पूजा करते हैं। तो 90% 95% 99% है वो अर्थ और अर्थाती है। हाँ मान, यस जिज्ञासु है थोड़े बहुत, ज्ञानी की बात छोड़ दी। महाराज, पॉइंट इज ओके, बर्थ ऑफ रिलीजन। स्वामी जी ने कहा ना कि धर्म कैसे शुरू हुआ। अच्छा महाराज, सवाल ये है कि ये ज्ञान है ही नहीं, 99% नहीं, 99.99% में ये ज्ञान है नहीं, तो वो कैसे समझेगा कि हमें स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचना है? ये चीज ही नहीं है इस दुनिया में उनके नजर में। तुम बिल्कुल कहा, उसको जब चांटे लगेंगे ना, हाँ, तो जब चांटे लगेंगे उसको, जीवन में विपत्ति आएगी, तब भगवान को पुकारेगा। तो महाराज, जो वो उस समय जो पुकारेगा उसको रिलीजन कहेंगे या स्पिरिचुअलिटी कहेंगे? वो तो उसके बाद स्पिरिचुअलिटी शुरू होगी। हाँ बाकी जो है ना रिलीजन, छोटा रिलीजन, आर कैपिटल रिलीजन होता है स्पिरिचुअलिटी, और छोटा आर से लिखने में है ऑर्डिनरी रिलीजन, जो है सुबह शाम का पूजा हो रही है। अभी यहाँ पे तो विश्वनाथ मंदिर में ये अपने क्या श्रावण महीना, अरे बाप रे बाप, हॉरिबल श्रावण महीना, अंदर घुसने की मुझे संभावना नहीं। तो ये छोटा आर है, छोटा आर कर दो। चलिए, मैंने देखा था, इसको किसी ने यूज किया था किसी आर्टिकल में, छोटा आर और बड़ा आर। हम लोग क्या जिज्ञासु स्तर में पहुंचे हैं क्या महाराज? आपको क्या लगता है? महाराज, हम लोग सब ये छोटे आर वाले ही हैं। अब ये आप जानो, मैं क्या ना महाराज, मतलब आप तो ऊपर से देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? हम लोग जिज्ञासु स्तर में पहुंचे या अभी भी आर्त अर्थात में है? नहीं भाई, अच्छा अब उसके बाद चलो आगे चलो। महाराज जी, एक मिनट, माँ ने ये कहा था
कि जो मेरे को मेरा एक बार भी नाम लेगा उसको मैं तेर दूंगी। तो हम तो रोज आपका नाम ले ही रहे महाराज, हर संडे को, और उसके सिवा ये आर्टिकल देखते हुए भी। तो कुछ ना कुछ तो अब ये तो मैंने तो नहीं कहा, जिसने कहा उससे पूछो, मैंने तो नहीं कहा ना महाराज, वो आप ही के थ्रू जा सकते हैं ना। ওটা अच्छा, ওটা चलो आगे ব্যাকগ্রাউন্ডটা चलो। নীল আছে না, তো रीता মুখটা रीता নীল হবে। रीता Pranam Swami ji. এরকম করে हाँ, চেঞ্জ बोलो। করে So ব্যাকগ্রাউন্ডটা। my question, Video. I'll just read out the question. The answer has been Ah. discussed already. Okay, Swamiji speaks of true religion, which helps man to evolve higher. I have only one doubt. That is, to me, it seems Swamiji has said on page 67, first para. To me, it seems very natural that the glimpse of religion Ever should yet- come yet through abandoned- dreams. The first idea of immortality man may well get through dreams. Kindly explain, as I have not understood. How can one get first already glimpse? Yes, already discussed. discussed, you know. Yes. Okay. I just read the question now. निवेदिता हमारा मेरा पहला प्रश्न है, what is the aim of this speech which was given by Swamiji in London? तो aim क्या है, मतलब why he wants to tell all people? अभी को ऐसा है नहीं, वो क्या है कि उन्होंने को बुलाया, उनको लोगों ने, स्वामी जी अमेरिका में चले गए थे जी, वहां से उनको इंग्लैंड में बुलाया लोगों ने। इंग्लैंड में स्वामी जी को बुलाया उन लोगों ने, पहले अमेरिका में इनविटेशन था, फिर लोगों ने देखा कि तो बुद्धिमान आदमी है, इनको इंग्लैंड में आइए। अब इंग्लैंड में जब गए उनको बोला लेक्चर दीजिए जी, लेक्चर क्या देना है। तो ये जितने लेक्चर हैं ये ज्ञान योग के अंदर में, ज्ञान योग की किताब में वो कंपाइल किए हैं। लेकिन ज्ञान योग सबसे 3 आर्टिकल जो है माया पे हैं। माया इन इल्यूशन, माया इन द इवोल्यूशन ऑफ कांसेप्ट ऑफ Yes, गॉड, লাইটটা বন্ধ করে দে। माया इन फ्रीडम, ये 3 এই माया पे লাইট हैं। বন্ধ করে দে। और सब इसमें ये जितने हैं कि वो ज्ञान योग से संबंधित हैं आर्टिकल्स। तो स्वामी जी ने देखा कि लोग जो है ये रैशनल लोग हैं। अब इस आर्टिकल में जैसे है, तो उस समय यूटिलिटेरियनिज्म चल रहा था बहुत सारा, तो यूटिलिटेरियनिज्म के अगेंस्ट उन्होंने बोला है। तो बोल ये नहीं, ये है कि ऑल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है, ज्ञान योग से संबंधित एस्पेक्ट जो है, माया है, ब्रह्म है, जीव है, उसका कंसेप्ट है, उनको वेस्टर्न लोगों के, इंग्लिश लोगों के आइडिया के अनुसार उसको प्रेजेंट करें। ठीक है That's all. जी। और दूसरा प्रश्न है, why do human beings love nature so much and go to the various places in spite of getting आदि दैविक दुख? तो प्रकृति में तुम अगर हिमालय देखने जाओगे, बड़ा बढ़िया दिख रहा है हिमालय, तो उसमें थोड़ा सा दुख होगा। किस चीज में दुख नहीं होता? खाना बनाने में भी तो खाना तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो खाना नहीं चलेगा जी। अब पैसे से हम जाके होटल में खाएंगे तो पैसा कमाना पड़ेगा। तो तुम्हारा क्या क्वेश्चन है? अगर प्रकृति का तुमको आनंद लेना हो तो प्रकृति को देखने के लिए जाना पड़ेगा, तो तुमको जाना पड़ेगा वहां पे, कष्ट कटार उठाना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है? तो प्रकृति तो हमको मारती भी है ना, सुनामी वगैरह प्रकृति तो देती है ना, तो प्रकृति सभी जगह तो कष्ट होगा आपको। बच्चे को प्यार करो तो बच्चा भी तो कष्ट देगा जी। ये तो बराबर है। संसार में कष्ट, दुख, कष्ट हमेशा साथ में है, दोनों साथ में रहेंगे जी। बस हो गया महाराज, यही 2 प्रश्न थे। अच्छा, हो गया जी। चलो, और कोई पूछने वाला है क्या? आज केवल इस बार केवल 7 है और 3 लोगों ने एब्सेंट किया, उन्होंने परमिशन ली कि एडमिट से हम लोग नहीं आ सकेंगे। स्नेहा है। प्रणाम महाराज। अरे तुम्हें ज्वाइन करे छो? अरे हाँ, अभी ज्वाइन करेছি महाराज। इतू ने कहा कि मैं ज्वाइन नहीं, हम दोनों ज्वाइन नहीं करेंगे। मैं तो ज्वाइन कर चुकी हूँ महाराज, मैं हूँ इधर। वेरी गुड, पूरा अटेंड किया? हाँ, पूरा नहीं, 9:45 को आया, ज्वाइन किया महाराज। 9:45। ठीक है। हाँ। ओके ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो बंद करें? हो गया जी महाराज।
Pranam Maharaj. Om शांति 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 हरि अर्पणमस्तु